is used for rheumatic fever, type 1 diabetes, Reiter syndrome, multiple myeloma या myocarditis, rheumatic fever. Tumor suppressor gene involved in renal and gonadal agenesis is WT1, P53, BCL2, BRCA1 या KRAS. ट्यूमर सप्रेसर जीन रीनल और किडनी कौन सी होती है? ये होती है WT1. Function of nose at alveolar level is humidification and air conditioning, filtration, absorption या mucus production. Very good. Next MCQs है. Neurotransmitter of mood is dopamine, serotonin, glycine, GABA या choline. Neurotransmitter of mood is serotonin. और emotions के लिए कौन सा होता है? Dopamine. What change will be seen first in response to stress? Increase ACTH, increase CRF, increase cortisol, increase epinephrine, increase glucagon. Increase CRF. What type of necrosis is seen in omentum? Fat necrosis, coagulative necrosis, fibrinoid necrosis, liquefactive necrosis, medial necrosis. म्यूरल थ्रोम्बोसिस ओरिजिनेट इन लंग्स, लिवर, हार्ट या किडनी. म्यूरल थ्रोम्बोसिस कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हार्ट से. सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 1 न्यूमोसाइट या टाइप 2 न्यूमोसाइट या क्लारा सेल्स या गोबलेट सेल्स. टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. टाइप 2. Which one of the following is slow adaptive receptors? Hair follicle, Pacinian corpuscles, Meissner's, Ruffini receptors या free nerve endings. Ruffini. Hippocratic oath describe clearly which one of the following? Sexual boundaries, advertisement, doctor's right या confidentiality. किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? कॉन्फिडेंशियलिटी को. Hyperkalemia leads to which one of the following? Decreased action potential, tachycardia, flaccidity या spasticity. Hyperkalemia में क्या होता है? Always flaccidity. Melatonin regulates which one of the following? Pigmentation, taste, vision, visual acuity. Pigmentation. डॉक्टर सना ये हम कर रहे हैं सेक्शन 3 SK 1 to 17 और अभी में वाइवा चल रहा है अभी. उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवाते हैं. नायासिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? PNS डिफेक्ट, CNS डिफेक्ट, एपिथेलियल डिफेक्ट, लिम्ब डिफेक्ट या एंजाइम डिफेक्ट. CNS डिफेक्ट. लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्प्लेनिक, हेपेटिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रिक या सीलिक. स्प्लेनिक. Manubrosternal joint is which type of joint? Primary, cartilaginous, secondary, symphysis, syndesmosis या ball and socket. Secondary. Neck of the femur is supplied by which one of the following? Medial and lateral circumflex, posterior and medial circumflex, obturator, femoral या tibial. Medial and lateral. During exercise, blood flow to the which one of the following decreases? Skin, splanchnic, skeletal muscles, heart या lung. Splanchnic. Which is the most slow growing malignancy of the thyroid? Follicular carcinoma, medullary carcinoma, papillary, anaplastic या goiter. papillary. ठीक है. Yes. पहले किडनी आएगा देन स्प्लेनिक. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. MCQs नंबर 801 पेज नंबर 197 SK 1 to 17 सेक्शन 3. आज हम इसे एंड कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा ये आज भी हमने डबल ए में किया था कि जब भी ड्राई माउथ होगा, ड्राई आइज होंगी तो कौन सी होगी? जॉर्जन सिंड्रोम. और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? एंटी रो एंड एंटी ला एंटीबॉडीज. स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल्स कौन करवाता है? ADH. टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स में एंडोसाइटोसिस कौन करवाता है? फैगोसाइटोसिस. और फैगोसाइटोसिस किसका फंक्शन है? कौन करवाता है फैगोसाइटोसिस? मैक्रोफेजिस करते हैं ना. मैक्रोफेजिस करेंगे. विच नर्व विल बी पास बिटवीन C5 एंड C6 में से क्या गुजरी होती है? C6 गुजरी होती है. पेशेंट विद
lower backache and pain radiating to the posterior thigh having this herniation between the L4 and L5 affect which vertebrae? किसको affect करती है? L5. L5. On histology, flask shaped cells. तो फ्लास्क शेप सेल्स और मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनेप्स किसके अंदर होती हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिबेलर के नाम से आपने याद रखना है कि थोड़ा बेली है ना उसकी, तो बेली इज लाइक फ्लास्क शेप। ठीक है, आपने इस तरह याद रखना है। तो जब भी फ्लास्क शेप सेल्स हों जिसमें मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनेप्स आ रही हों, वो किसके अंदर होता है? सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ठीक है। पेशेंट विद लीजन इन द ब्रेन प्रेजेंट विद रेस्टिंग ट्रेमर्स। तो रेस्टिंग ट्रेमर्स किसके अंदर आते हैं? पार्किंसन के अंदर। इसमें कौन सा होता है? सस्टेंशिया नाइग्रा। और कौन सा क्या चीज़ रिलीज होती है इसमें? डोपामिन। रेटकी पाउच कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? आउट पाउचिंग ऑफ स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट। ठीक है, ये हमने लास्ट डे भी किया था। हेक्सोमाइनेज अल्फा की ए की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है? टे सैच डिजीज में। अच्छा ये बताइए, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है? टे सैच ग्लाइकोजन है। कंफर्म है ये आपको? अच्छा, ये मुझे कंफर्म करके बताएं क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। 2 पेजेस आपने लाजमी करने हैं फर्स्ट एड से बायोकेम के। मैंने आप लोगों के बैच के साथ शेयर किया हुआ है कि बायोकेम के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं आपने। अच्छा, जब आपकी बायोकेम के डेज चल रहे हुए ना, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि बायोकेम फर्स्ट एड से कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो मैंने लास्ट वाले बैच को ना वो टॉपिक्स पेजेस की पिक्चर सेंड की थी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड से, कि ये कुछ चीज़ें जो आपने फर्स्ट एड से सारी बायोकेम FCPS के लिए तो नहीं करनी होती, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके रफ़ी AA से बाहर भी आते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? फर्स्ट एड से आते हैं। ठीक है, तो जब आपके शेड्यूल में बायोकेम चल रहा हुआ तो आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग करवा दूंगी फर्स्ट एड से। अच्छा ये तो बताएं, कंफर्म करें, ये ग्लाइकोजन है, लाइसोसोमल है? डॉक्टर आयशा कंफर्म है आपको? मुझे भी वैसे ये लाइसोसोमल ही लग रही है। लाइसोसोमल है। ठीक है, तो टेस्ट एच के आगे लिख लें कि ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। ठीक है। डिक्रीज एसिड इन स्टमक विल रिजल्ट इन, ये क्या करवाती है? एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन। ए बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होता, तो हम किसी ना किसी और चीज़ को ब्लेम डाल देते हैं कि इसकी वजह से ये रीज़न है जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा रिस्पॉन्स होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि जो अपना एंगर है वो हम दूसरों पर डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे एग्ज़ाम में ये वाला MCQs आया था। ठीक है, A11 वाला MCQs एज इट इज़ मेरे एग्जाम में आया था। ए नॉन पेशेंट ऑफ MI विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब किसके अंदर होती है? पेरिकार्डाइटिस के अंदर। पेरिकार्डाइटिस के साथ अगर क्रेटिनिन रेज्ड है तो इसका मतलब है यूरेमिक, यानी कि किडनी इन्वॉल्व है। तो क्या आ जाएगा? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। इसमें ECG की चेंजेस क्या आती हैं? वेरी गुड डॉक्टर, हमने ठीक आंसर दिया। PR डिप्रेशन होता है इसमें। कॉर्टिकल लेयर ऑफ oocyte सिक्रेट किस चीज़ को सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन को। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड टू कवर्नस साइनस वाया सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। कट गई है वॉइस, आपको क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है? वो पहले मैं लिखने लग गई थी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज वाला। फ्रंकुलो, अच्छा, प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय वस्कुलर एंडोथेलियम। और प्रोस्टासाइक्लिन के साथ वस्कुलर एंडोथेलियम क्या चीज़ रिलीज कर रहा होता है? फैक्टर 8B। बाकी सब चीज़ें लीवर बना रहा होता है।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करवाता है, डिलेड करवा देता है वुंड हीलिंग को। स्टेरॉइड्स मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर किस लिए होता है, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये किस में आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी या टर्शरी? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है बच्चों। प्राइमरी वो होगा जिसमें हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जैसे अगर हमने एब्रॉड जाना है, आपने ट्रैवल करना है, तो वहाँ कुछ जो डिजीज़ इंडेमिक है हम उससे पहले ही उसकी वैक्सीनेशन दे देते हैं। तो ये किस में आ जाएगी, प्राइमरी प्रिवेंशन की। अभी डिजीज़ हुई नहीं है लेकिन चांसेस से बचने के लिए हमने पहले ही पेशेंट को इम्यूनाइज कर दिया है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज के डिजीज़ कैन बी प्रेजेंट इन द पेशेंट, बस हमने उसे डायग्नोज कर लेना है, उस बीमारी की तशखीस करनी है, उसके साथ उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन क्या है, एस विरिडेंस। वैसे मोस्ट कॉमन एस स्टेफ ओरियस होता है। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन, अच्छा सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस लिखा हुआ है, ठीक है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या आएगा, एस विरिडेंस, ठीक है। लेकिन अगर वो सब एक्यूट की बात ना करें, अगर सिर्फ ओनली एक्यूट होता देन, हाँ जी ठीक बता रहे हैं, अगर एक्यूट होता तो स्टेफ ओरियस आता, अगर सब एक्यूट होता तो विरिडेंस। लार्ज फ्राइबल इरेगुलर वेजिटेशन किसके अंदर आती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। और फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन किस में आती है, नॉन बैक्टीरियल NBTE के अंदर। और लार्ज फ्राइबल इरेगुलर वेजिटेशन किसके अंदर आती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। इन सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड बिटवीन इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड इज हाइड्रोफोबिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबर्स के अंदर। विच वायरल एजेंट कॉज ब्रोंकिएक्टेसिस इन द, बच्चों में कौन करता है ब्रोंकिएक्टेसिस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, बच्चों में वैसे भी मोस्ट कॉमन यही होता है, और रोटा वायरस भी होता है। 13 ईयर्स ओल्ड, अच्छा बताएं ब्रोंकिएक्टेसिस कौन सी डिसऑर्डर के साथ आ रहा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ आता है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। 13-year old child present to the hospital emergency department with acute severe asthma having severe bronchoconstriction, the most approachable, सबसे पहले उसे क्या देंगे, साबा देंगे। इनहेल्ड, इनहेल्ड यानी कि ये हम उसे दे रहे होते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, नेबुलाइजेशन, किस फॉर्म में देते हैं, इनहेल्ड का क्या मतलब है, नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है। Loss of 2-point discrimination, fine touch and vibration in the left lower limb. The region at brain affected would be, अब देखें लोअर लिम्स आ गए हैं, तो लोअर लिम्स में क्या होती हैं, कहते हैं ग्रेसफुल लेग्स, तो फेसिकुलस ग्रेसिलस, ग्रेसिलस यानी कि ग्रेसफुल लेग्स, आपने इस तरह याद रखना है। अपर लिम्ब में ग्रेसेलस एंड सॉरी लोअर लिम्ब में ग्रेसेलस एंड अपर लिम्स में क्यूनेटस, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन में आगे आप लिख लें, इसमें लोअर लिम्स आएंगी, और फेसिकुलस क्यूनेटस के आगे लिख लें कि इसमें अपर लिम्स आएंगी, ठीक है। और इसमें कौन से ट्रैक में आती हैं, ये दोनों DCML ट्रैक में आती हैं। शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट को क्या कहते हैं, हैलेडन इफेक्ट, राइट को क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट। प्रोपाइल थायोयूरासिल PTH लेवल डज नॉट चेंज, इन किस में चेंज नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर PTH का लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होता। एक क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एओर्टा की स्टेनोसिस हो गई है ना, स्टेनोसिस का मतलब है कि वेल्व पतला हो गया, सारा अंदर नहीं जा रहा, यानी कि एओर्टा के अंदर नहीं जा रहा, पीछे ही रह जा रहा है वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल का जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, उसे ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी करनी पड़ेगी, तो उसकी मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग इन पेशेंट ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या आएगा, बाउंडिंग पल्स, ठीक है।
Dye delivered a baby hematoma developed in broad ligament is due to injury of uterine artery. Neuroendocrine response after surgery is due to hemorrhage. Hemorrhage की वजह से होता है. अच्छा, कोई भी सर्जरी है इसमें, कोई भी सर्जरी आ सकती है इसमें. मेन इंपॉर्टेंट बात कि सर्जरी के बाद क्या हो जाता है, हाइपोवोल्मिक शॉक में पेशेंट आ सकता है. हाइपो पोस्ट ऑप पेशेंट. ठीक है, ये आपको, ये तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी हुई है. ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपके पास आएगा कि कोई एक पेशेंट था, उसका सिनेरियो बना हुआ आएगा कि पेशेंट था, हर्निया का उसका ऑपरेट हुआ था 2 days बैक, लेकिन अब उसमें ना ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और पेशेंट के वाइटल्स दिए हैं, मतलब एक सिनेरियो बना के देंगे. तो उसमें मेन कोज क्या है, हेमरेज की वजह से हाइपोवोल्मिक शॉक में चला गया है. ठीक है, विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रूव ऑफ मीडियास्टम, क्या गुजरा होता है इसोफेगस. Patient presented with the RT having severe bleeding occur whose blood group is B है दिया हुआ है. ठीक है, नो क्रॉस मैच अवेलेबल इमीडिएटली, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव. ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है. ए पेशेंट ABGs रिवील, पीएच उसकी रेज्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, पीएच ज़्यादा है तो अल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड नहीं हुई पीएच को कम करने के लिए, इसका मतलब है अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई कॉज्ड बाय सूडोमोनासिस सिप्रोफ्लॉक्सासिन. लेकिन अगर यूटीआई के बगैर सिर्फ सूडोमोनास की बात की जाए तो क्या देते हैं, सेफ्ट एजिडाइम. 40 years old man presented with sudden severe chest pain and died in ER. He was found to have aortic dissection. एओटिक डाइसेक्शन में क्या होता है, मीडिया इन्वॉल्व होता है इसका, तो मीडियल नेक्रोसिस हो जाएगी इसमें. पेशेंट प्रेजेंट विद सवेयर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग, तो इसमें किस में आता है, एमआई के अंदर. एमआई का पेशेंट हमेशा स्वेटिंग और चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा. टोटल हेमाटोक्रिट बच्चों में कितनी होती है, 54. यंग मैन प्रेजेंटेड with complaint of noise, one sided facial flushing, heat up with no sweating. तो डिफेक्ट किस में आता है, सिंपैथेटिक लॉस. इसे क्या कहते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम. रिगार्डिंग ग्लूक्रोनिडाइजेशन, ट्रू स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग देयर बाय एक्सक्रीशन. यानी कि ग्लूक्रोनिडाइजेशन क्यों करवाते हैं, ताकि ड्रग जो है वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाए और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. विलाय आफ्टर थर्ड गेस्टेशन, ब्लड डिफ्रेंशिएट किस में कर जाते हैं, टर्शरी विलस के अंदर. पीक एक्सपायरेटरी फ्लो किस चीज़ को मेजर करती है, इनके पेफ की बात कर रहा है. तो किस किस को मेजर करते हैं, प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ FEV1 फॉर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फंक्शनल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड एक्सेस द लार्ज एयरवे कैलिबर. ठीक है, पीक्स एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर हम किस में चेक करते हैं, एस्थमा के पेशेंट्स में चेक कर रहे होते हैं. अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकोंडाइल, विच मसल विल बी अफेक्टेड, तो कौन सा मसल अफेक्टेड होगा, मीडियल टू लम्ब्राइकल्स. टू ट्रीट द एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग, कौन सा एंटीडोट होता है इसका, N-acetylcysteine. A muscle that is attached to more than one joint and prevent the excessive movement of the proximal joint. तो इसको क्या कहते हैं, फिक्सेटर्स. अच्छा, ये आपके ना AA में दिया हुआ है, ये आपने अच्छे से याद करने हैं. AA 12 पॉइंट. इसका फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है. ठीक है, इसमें सारी ना ये एग्जाम में आती हैं कि फिक्सेटर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम मूवर्स कौन होते हैं, एगोनिस्ट कौन होते हैं और एंटेगोनिस्ट, साइनर्जिस्टिक. ये सारी चीज़ें ना, ये मैंने आई थिंक इसकी पिक्चर भी ली हुई है, वरना मैं आपको भेज देती हूँ. अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मैं ग्रुप में आपके साथ पिक्चर्स शेयर करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, मतलब आप उन्हें रीड करते हैं या नहीं करते. फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे नेक्स्ट शेयर करूँगी. अगर वो हेल्प आउट नहीं करती तो फिर मैं वो नहीं फर्दर नहीं शेयर करूँगी. होती हैं, मतलब आपके पास एनफ टाइम होता है कि आप उन्हें रीड कर लेते हैं, या आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होती हैं
और आपके पास उन्हें देखने का टाइम मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर हेल्पफुल होती हैं तो मुझे बता दिया करें, फिर मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने जितने एमसीक्यूज करवाए होते हैं ना, जैसे अब इसका आया है 844 है, इसकी मैंने पिक्चर लेके रखी होती है कि ये वाला इसका रेफरेंस ये है। तो मैं खुद भी प्रेपरेशन ऐसे ही करती थी और मैं पहले बैच को भी ऐसे ही करवाती थी कि अगर आपने ये वाला किया है ना तो इसके साथ आप बुक खोलो, यानी कि जो मैंने आपको शॉर्ट पिक्चर्स सेंड करती हूँ ग्रुप में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में ये एमसीक्यूज ऐसे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट एग्ज़ाम में बाकी चीज़ें भी तो आएंगी ना, ऑप्शन अल्फ़ा आ सकता है, चार्ली या डेल्टा भी आ सकता है। तो अगर एक टॉपिक आ गया है वो इसलिए आया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इससे मिलता जुलता टॉपिक ही एग्ज़ाम में आएगा। एग्जैक्टली ये वाले एमसीक्यू सारे 100% तो नहीं आएंगे ना। तो आप कोशिश किया करें कि जो ग्रुप के अंदर चीज़ें रेलिवेंट ही मैं शेयर करती हूँ, बहुत इरेलीवेंट चीज़ें मैं खुद भी नहीं ना पढ़ती हूँ ना मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इसकी मैं टेबल सेंड कर दूंगी, अदरवाइज आपने खुद भी, मैंने आपको इसका रेफरेंस बता दिया, आपने रीड करना है ज़रूर। ए पेशेंट कैन नॉट श्रग हिज शोल्डर, ही आल्सो हैड माइल्ड टॉसिस एंड मायोसिस। तो टिप ऑफ द टंग की नर्व सप्लाई लिम्फ नोड कौन सी होती है? सब मेंटल। और सॉरी ये गलत चीज़ बता रहे हैं इसके रेफरेंस में। श्रग हिज शोल्डर, तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर में नर्व सप्लाई कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 11, जिसे कहते हैं असेसरी नर्व के साथ। टॉसिस क्यों हो रही है? माइल्ड टॉसिस एंड मायोसिस क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक चेन डैमेज होगी। सिंपैथेटिक क्या कर रहा था उसमें? सिंपैथेटिक क्या करता है? आई में माइड्रेसिस करवाता है। अब सिंपैथेटिक डैमेज हो गया तो आइज में मायोसिस हो जाएगी एंड टॉसिस हो जाएगी। ठीक है, तो असेसरी नर्व का डैमेज हुआ है, साथ सिंपैथेटिक चेन डैमेज होगी, यानी कि हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। फर्स्ट लाइन मैक्रोफेज ऑफ डिफेंस लंग में कौन से होते हैं? डस्ट सेल्स या एल्वुलर मैक्रोफेजेस। 16-year-old boy presented to OPD with 104 fever for last 4 days and प्रिस्क्राइब्ड एंटी मलेरियल। अब देखें इसमें हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बॉय है, ड्रग्स की हिस्ट्री है और फीवर है, उसे एंटी मलेरियल्स ले रहा है, उसके बाद उसे कोला कलर्ड यूरिन है। अब इसका डायग्नोसिस क्या होगा? G6PD। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉय एक तो यंग बॉय है और ड्रग्स की हिस्ट्री है, ड्रग्स की हिस्ट्री के बाद कोला कलर्ड यूरिन है। ठीक है, तो ये G6PD है। G6PD बताएं एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है? वेरी गुड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी और हीमोफीलिया भी। GLP-1 एगोनिस्ट एंड एंटी डायबिटिक, इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? एक्जिनाडाइड। और मुझे ये बताएं सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कौन करवाता है? यही वाला ग्रुप नहीं है GLP-1 एगोनिस्ट, ग्लाइमब्राइड। ठीक है, ये जो डायबिटीज़ वाला टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी सारी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत 4-5 MCQs तो आप लगा लें कि डायबिटीज़ में से आते हैं। ग्लाइबन क्लेमाइड का MCQs ये था कि एक यंग ओल्ड लेडी है, वो प्रेजेंट करी है इमरजेंसी में, उसका ग्लूकोज जो है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आ गया है। तो वो कौन सी ड्रग है जो ओल्ड एज के पेशेंट्स के अंदर सवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है? इट विल बी ग्लाइम क्लेमाइड। ठीक है, वो इस तरह का MCQs आता है कि सवियर हाइपोग्लाइसीमिया ओल्ड एज के अंदर कौन करता है? ये वाला ग्रुप करता है। ठीक है, 85-year-old man presented with a fever, neck stiffness, diagnosed as meningitis. Which organism is helpful? स्टेप्टोकोकस नमूनी मेनिनजाइटिस में। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज है, एक तो ओल्ड एज के अंदर मेनिनजाइटिस कौन कॉज करेगा? स्टेफ नमूनी। इन फिटल एक्साइड सर्कुलेशन हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन किसके अंदर होती है? अम्बलाइकल वेन के अंदर। अच्छा, अम्बलाइकल वेन एक होती है या दो होती हैं? और अम्बलाइकल आर्टरीज दो होती हैं। विच वन हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा किसके कर लिया हमने?
ब्लड सप्लाई कंट्रोल ऑफ विच ऑर्गन इज अंडर सिंपथेटिक सिस्टम रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, तो स्किन की सिंपथेटिक के अंदर होती है। ब्लड क्लॉट क्या क्या चीज़ बनाती है? फाइब्रिन। ए malnourished child with multiple extracted teeth he had on radiography scan were not suggestive of his age. Calculation how will you assess? तो आप पेशेंट का क्या चेक करेंगे? मेल नरिश्ड। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेल न्यूट्रिशन है। तो मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को हम कैसे असेस करते हैं? उसकी हाइट चेक करते हैं और वेट चेक करते हैं। हाइट टू वेट का रेशियो कर लेंगे। रिगार्डिंग द पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? लिवोडोपा पहले दे देते हैं ताकि डिजीज़ बहुत सिवियर ना हो जाए। स्टेनिंग शो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन मैनी अटेम्प्ट्स मेड बट कैन नॉट बी कल्चर्ड अदर वट अदर टेक्निक कैन बी यूज। तो आप दूसरी क्या करवा लेंगे? सीरोलॉजी करवा लेंगे उसकी। एयरवे रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड वाया कौन से रिसेप्टर? एयरवे की रेजिस्टेंस रिड्यूस का क्या मतलब है? ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, वो कौन करवाता है? बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, और ये कौन से होते हैं? सिंपथेटिक होते हैं। सिंपथेटिक सप्लाई होती है। सस्पिशन ऑफ सूडो सीजर्स किसके अंदर होता है? एब्सेंट सीजर। इसका मतलब है कि 1 to 2 मिनट्स तक के सीजर था। इसमें ऐसे एग्जांपल है कि एक बच्चा था, वो टीवी देख रहा था। अब टीवी देखते देखते उसे एब्सेंट सीजर ऐसे आएंगे कि वो टीवी देखते देखते ना टीवी की तरफ स्टेयर कर रहा है। अब हो से सीजर्स रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि सीजर्स नहीं है, इसलिए इसका नाम है एब्सेंट सीजर या सूडो सीजर्स। आपको लगता नहीं है कि सीजर्स आए हैं लेकिन सीजर की एक्टिविटी झटके लग के ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन था कि वो इतना नोटिस नहीं होता। द स्ट्रोंगेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल इन CNS कम्स फ्रॉम विच न्यूरॉन्स? कौन से न्यूरॉन्स आते हैं? परकंजी सेल्स ऑफ सेरिबेलर कॉर्टेक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, इनहिबिटरी होते हैं और ये क्या होती है? ये भी MCQs आता है कि ये क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं। इसके पॉइंट में ऊपर ही लिखा हुआ है द स्ट्रोंगेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं। ये नेक्स्ट MCQs मेरे एग्जाम में आया था कि मिटोपिक सूचर का रेमिनेंट एडल्ट लाइफ में क्या होता है? ग्लेबेला। और ये मुझे पहले नहीं पता था ये MCQs। तो ये SK 1 to 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये साथ साथ करेंगे तो आपको आएगा, और इसमें से एग्जाम में काफ़ी MCQs आते हैं और ये बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। रिगार्डिंग द माइक्रोग्लायल सेल टू, इसमें से क्या है? स्टार्ट एक्टिविटी इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अच्छा ये बताएं कि अगर डैमेज ब्रेन टिश्यूज़ हैं तो उसमें कौन से सेल्स आएंगे? वेरी गुड। और रीजनरेशन कौन करेगा? रीजनरेशन कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट्स। वेरी गुड। ESR किससे रिलेटेड है? अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR का क्या मतलब है? अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाय ली चैटलर्स लॉ। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है पेन इन द लंबर रीजन, स्टोन एट द पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन। पेन अराइजिंग फ्रॉम किस सेगमेंट से अराइज करती है? T12 से TL2 तक। ए प्रेग्नेंट लेडी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इरेगुलर पल्स, यानी कि इसमें ऑन ऑस्कल्टेशन देर इज ए मिड डायस्टोलिक मर्मर। तो मिड डायस्टोलिक मर्मर किस में आता है? माइट्रल स्टेनोसिस में। तो माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या आती है? पी माइट्रेल आती है ECG के अंदर। पी माइट्रेल का क्या मतलब है कि ECG के अंदर ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की चीज़ आ रही होती है, यानी कि जो पी वेव होती है ना उसमें एक स्पाइक होती है, एक वो नीचे को आ रही होती है, एक ऊपर जा रही होती है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक साइन बना के दिखा दी है। इस तरह की पी वेव आती है, ऊपर भी आती है और वो नीचे भी आ रही होती है, यूं करके S बना रही होती है, S शेप में। अच्छा, साउंड इज बेस्ट परसीव्ड एट किस एरिया के ऊपर होता है? कॉक्लियर न्यूक्लियस के ऊपर। ए यंग फीमेल डिवेलप endometrial carcinoma, mother died of same disease, brother diagnosed as a case of colon cancer, what gene is mutated in the family? तो इसमें कोलोन कोलोन का जो कार्सिनोमा होता है उसका कौन सी होती है? अब इसमें आपने APC नहीं लगाना है, इसमें APC का कोई रोल नहीं है, MSH2। ठीक है, मिडल रेक्टल आर्टरी, अब हम इसमें सारे ब्रांचेस पहले देख लेते हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? IMA की। इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी
और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? और डॉक्टर सारा पेज नंबर 204 है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एओर्टा की ब्रांच नहीं है, एब्डोमिनल एओर्टा की। और ये कहाँ के किसके ऊपर अराइज करती है? L3 के लेवल पे। MCQ नंबर 863। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल एओर्टा की। और किस लेवल पे अराइज करती है? L3। फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आगे जाके क्या बनाती है? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बनाती है, ठीक है। और मिडल रेक्टल किसकी ब्रांच है? मिडल रेक्टल इंटरनल आइलिक की, कॉमन आइलिक से आएगी। कॉमन एब्डोमिनल एओर्टा नीचे जाके क्या बना देगी? कॉमन आइलिक बना देगी। कॉमन आइलिक ने आगे जाके इंटरनल आइलिक और एक्सटर्नल आइलिक बना देनी है। और इंटरनल आइलिक की आगे क्या ब्रांच है? मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। और इंटरनल आइलिक आर्टरी की ही ब्रांच है इंटरनल पोडेंडल। तो इंटरनल पोडेंडल आगे जाके क्या बनाएगी? इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ये क्लियर हो गई है? A patient is having fever and pneumonia for 5 days. Which one of the following is the best way to find out causative agent? Sputum culture करवा लेंगे। Child with frontal and occipital bossing due to premature closure of कौन सा suture? Sagittal suture. Which dye is used to measure the cardiac output? को कैसे measure करते हैं? कार्डियो को अपने कार्डियो ग्रीन से, कि ग्रीन कलर का सारा हो जाएगा। Which sensory tract provide motor information to the cerebellum regarding the motor tract, corticospinal and rubrospinal in the ventral horn of the spinal cord? तो इसमें वेंट्रल हॉर्न आ गया ना, तो इसमें वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा वो सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन ले रही है ना, तो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर के स्पाइन भी इन्वॉल्व हो रही है, तो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है। इन क्रोनिक अल्कोहलिक FNA बायोप्सी ऑफ लिवर मोस्ट लाइकली क्या चीज़ शो करती है? अल्कोहल के अंदर लीवर का आर्किटेक्चर ख़राब हो जाएगा, तो डिसऑर्गेनाइज लिवर आर्किटेक्चर। अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमा अटैक विद इन द रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट्स विल शो। एस्थमा के अंदर क्या होगा? अगर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन होगी तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और बॉडी में कम हो जाएगी, ठीक है। तो लो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। ए बॉय विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन प्रेजेंटेड विद द वेरी नेक्स्ट डे विद ब्लीडिंग, लाइकली रीजन उसकी क्या है? एंटी कोआगुलेंट का इफेक्ट है। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग कौन करवाती है? यानी कि हेपरिन वगैरह ये सारी करवा रही होती है ना। एंटी कोआगुलेंट्स की एग्जांपल बताएं। हेपरिन आ जाएगी सारी, एस्प्रिन, ये सारी आ जाती हैं इसकी एग्जांपल्स। ये सारी ब्लीडिंग करवाती है ना। और इसकी एंटी कोआगुलेंट्स का एक साइड इफेक्ट बताएं, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएं इसकी, किस पेशेंट में आपने नहीं देनी। ये भी MCQs है। CVA इन्फार्क्ट वाले पेशेंट में आपने इन्हें नहीं देना, क्योंकि ये पहले ही ब्लीडिंग करवाती हैं, ठीक है। वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा एंड डिप्रेसिव एपिसोड मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज क्या है? एस्थमा की। अब इसमें क्या बात कर रहा है? पैथोजेनेसिस की बात कर रहा है एस्थमा की। तो एस्थमा की पैथोलॉजी क्या है? कि उसमें लिम्फोसाइट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं इन रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस। पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल्स किसका फंक्शन है? लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? रूब्रोस्पाइनल और मेडलो रेटिकुलर ट्रैक्स के अंदर। और जो फ्लेक्सर है, देखें आपके जो पोस्चर मेंटेन कौन कर रहा होता है? फ्लेक्सर मसल्स भी और एक्सटेंसर्स भी। फ्लेक्सर्स इन द अपर लिम, एक्सटेंसर्स इन द लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम के अंदर कौन से ट्रैक्स आएंगे? रूब्रोस्पाइनल एंड मेडलो रेटिकुलर ट्रैक। ये फ्लेक्सर मसल्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, पोस्चर को, यानी कि नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक्सटेंसर मसल्स इन द लोअर लिम, यानी कि जहाँ आप खड़े होते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स जिन्हें कहते हैं। ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी दोनों मसल्स मिला के ये पोस्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनका ट्रैक कौन सा है? वेस्टिबुलो स्पाइनल एंड पोंटो रेटिकुलर ट्रैक।
ये वाला आपको क्लियर हो गया? 877 MCQs। अच्छा, ए पेशेंट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया कैरियोटाइप 46XX डायग्नोसिस क्या होगा? CAH या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। और इसमें मुझे बताएं कि हाइपरकैलीमिया होता है या हाइपोकैलीमिया होता है? वेरी गुड। और हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसके साथ इसमें क्या होता है? कोर्टिसोल डिक्रीज होगा। और अ, और इसमें और क्या चीज़ ज़्यादा होती है CAH के अंदर? एंड्रोजन्स और आल्डोस्टेरोन पे क्या इफेक्ट आएगा? आल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा ना, क्योंकि हाइपरकैलीमिया है। आल्डोस्टेरोन डिक्रीज है तो पोटाशियम, इसीलिए तो हाइपरकैलीमिया है, क्योंकि वो बॉडी से निकाल नहीं रहा पोटाशियम को। ठीक है, आल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा। और एंड्रोजन्स आई थिंक इसमें इंक्रीज होते हैं। ये बात मुझे कंफर्म नहीं है कि एंड्रोजन्स, मुझे लगता है इसमें इंक्रीज ही होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है CAH की या एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम के। नेक्स्ट चलते हैं। ए पेशेंट केम विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस साइन एंड सिम्टम्स नाउ प्रेजेंट विद बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग के लिए आप कौन सी ड्रग देंगे? ऑक्सीब्यूटेनिन। इस एक डिजीज है, इसका नेम पता है किसको, क्या कहते हैं इसे, जिसमें बच्चा बेड वेटिंग के साथ आता है? इसे कहते हैं प्रोक्सिमल इसे कहते हैं प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल। और इसके आगे भी एक वर्ड है, इसको थोड़ा सा करें, सर्च करेंगे। बेड वेटिंग के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, बच्चों में ही होती है कि जो बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती, ये इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी गुड। एन्यूरेसिस, मुझे इसका एग्जैक्टली स्पेलिंग नहीं याद आ रहे थे। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, इसमें होता है कि पेशेंट्स आते हैं, ये ज़्यादातर उन बच्चों में कॉमन होता है जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कोई साइकोलॉजिकल मसले होते हैं, पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि बेड वेटिंग के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकली वो बच्चे इतना डिस्टर्ब होते हैं कि वो बेड वेटिंग के साथ मतलब उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं, डेवलप नहीं हुई होती, और बहुत उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, 10, 11, 15 ईयर्स तक। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा अभी भी बेड वेटिंग के साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें आप कौन सी ड्रग देंगे? ऑक्सीब्यूटिनिन देंगे। फीमेल विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर AV valve कैन नॉट बी मेड, विच स्ट्रक्चर इज डैमेज। इसमें क्या डैमेज हो जाता है? कॉडा टेंडनाई। द स्लो वेव इन स्मॉल इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल सेल्स आर कौन से होते हैं? ऑक्सीलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। प्रेग्नेंट लेडी हैज़ ट्विन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, शी हैज़ कॉमन प्लेसेंटा बट टू एमनियोटिक सैक, यानी कि दो अलग अलग है ना, तो मोनोकोरियोनिक के कोरियन मतलब प्लेसेंटा एक ही है, लेकिन डाई एमनियोटिक के एमनियोटिक सैक दो हैं। समझ आ गई इस MCQs की? 833 ए पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स ऑन एंडोस्कोपी देयर इज ए मैस इन द मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस। अपर 2/3 में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो लोअर 1/3 में अडीनो कार्सिनोमा। अपर 2/3 के अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अल्कोहल, हॉट लिक्विड इंटेक, स्ट्रिक्चर या स्मोकिंग एक्लेसिया। लोअर 1/3 में क्या आएगा? क्रोनिक गर्ड, बेरेड इसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग या एक्लेसिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ FiO2 क्या होती है? FiO2 वैसे होती क्या है? FiO2 क्या होती है ये? Maximum FiO2 which can be administered to the mother without raising the risk of fibrolental hypoplasia। तो वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम, ये मुझे सर्च करके बताएं इसका क्या मीनिंग है FiO2 का। तो कहते हैं कि जो सेफ रेंज है वो 0.8 तक है, लेकिन मैक्सिमम आप उसे 1 भी दे सकते हैं। लेकिन न्यू नेट्स के अंदर जो सेफ रेंज है कि बच्चों के अंदर अगर आप इतनी ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन का देंगे, FiO2 देंगे, ये ऑक्सीजन ही होती है। ठीक है, लेकिन FiO2 इसका एक स्पेसिफिक नेम है, फ्रैक्शनाइज्ड कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर दैट, नहीं, इससे FiO2 का ना, एक मैं आपको फिर सर्च करती हूँ, ये फ्रैक्शनाइज्ड ऑक्सीजन है, इसका एक मीनिंग है
इस FiO2 का। सेफ डोज इन यूनिट दैट डज नॉट कॉज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो न्यूनेट्स के अंदर सेफ रेंज 0.35 है, लेकिन मैक्सिमम आप उसे 1 तक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 से ज़्यादा दी तो उसे क्या हो जाएगा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया डेवलप हो जाएगी, यानी कि बच्चे की जो आइज़ हैं उसका रेटिना डैमेज हो जाएगा। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ईयर, ठीक है, यस, यही मैं सुनना चाह रही थी। ये क्या है, ये मुझे भूल जाता है। एफ से फ्रैक्शन, आई से FI। आई का क्या मतलब है, इंस्पायर्ड। O2 का मतलब है ऑक्सीजन की। ये फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है। नॉर्मली आप मिनिमम सेफ रेंज बच्चों में कितनी है, 0.35, लेकिन मैक्सिमम से 1 तक भी दे सकते हैं। लेकिन वो कौन सी रेंज है जिस पे कोई फाइब्रोलेंटल हाइपरप्लेजिया नहीं हो सकता, वो 0.8 है। तो आपने इसका मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ये आप नोट डाउन कर लें, ये इम्पोर्टेंट बात है। To avoid the repeated blood transfusion in end stage renal disorder, what should be the patient? तो पेशेंट में क्या चीज़ कम हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा ना। अनीमिया क्यों होगा, क्योंकि उसमें डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन होगी। ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज है तो आप उसे पे क्या देंगे, सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस की फॉर्म में देंगे। हाफ लाइफ ऑफ केनियामाइसिन इन पेरीलिम्फ, तो वो कितनी होती है, 2 आवर्स होती है इसकी हाफ लाइफ। ए पेशेंट नॉन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस इज हैविंग इरेगुलर पल्स। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जेवीबी में क्या आएगी, एब्सेंट ए वेव आएगी। और ए वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ए वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। और सी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को। जेवीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने जेवीपी रिवाइज बहुत दफ़ा करनी है, इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ए पेशेंट हैविंग नेजल पॉलिप, और इसके अंदर कौन सी, नेजल पॉलिप के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgE, और इसमें इओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज विद हाइपरटेंशन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन इनिशियली। सबसे पहले आप कौन सी देंगे, डायबिटिक। अच्छा, इसमें ना एग्जाम में जो आती है उसका नाम आता है, एग्जाम में ये आती है, ये आप अच्छे से लिख लें। कैप्टोप्रिल आएगी, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, ये एसी इनहिबिटर है, लिसिनोप्रिल। ठीक है। लेकिन एग्जाम में डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव जो पेशेंट आता है, आपने उसमें सबसे पहले क्या देनी है, कैप्टोप्रिल का ऑप्शन अगर लिखा होगा तो आपने उसको चूज करना है। ठीक है। और अगर इसमें कैप्टोप्रिल नहीं है तो इसमें लिसिनोप्रिल, आप इसको भी चूज कर सकते हैं, ये भी एसी इनहिबिटर्स ही है। एपिनेफ्रिन इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लीवर में क्या करवाता है, एपिनेफ्रिन ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, ग्लाइकोजन की लाइसिस करवा देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ए पेशेंट प्रेजेंट विद ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, ये कौन सा है, जॉर्जन सिंड्रोम, और इसमें हर चीज़ ड्राई हो जाएगी, एंटी रोला एंटीबॉडीज। विच टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और फ्रैक्चर ऑन द एंटीरियर और इंफीरियर पेराइटल बोन विद नो ब्लड स्टेन CSF, तो ये एपीड्यूरल हेमरेज आ जाएगा, एपीड्यूरल हेमरेज। ए पेशेंट विद severe diarrhea with what infusion will be given to increase the extracellular fluid and decrease the intracellular fluid causing plasma expansion after osmotic equilibrium। तो सवेयर डायरिया में आप क्या देंगे, 1 लीटर देंगे, 3% NaCl, क्योंकि हमने सिर्फ उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज करना है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सिर्फ अगर इंक्रीज करना है तो आप उसके लिए क्या देंगे, 1 लीटर देंगे, 3% NaCl, आपके लिखा हुआ है, मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ।
रफ़ी के अंदर रीनल में दिया हुआ है, इसका लास्ट पॉइंट है टेबल का, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन देने, इसमें आपने क्या देना होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देंगे। तो हाइपरटोनिक कौन सा आएगा, इन 3% NaCl। ए डायबिटिक लेडी हैविंग डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर्स। अच्छा, जब ये नीचे जाती है तो मैंने आपको बताया कौन सी नर्व डैमेज हो जाएगी, ट्रोक्लियर, ठीक है। और ये किस मसल को सप्लाई करती है, सुपीरियर ओब्लिक को, तो वो डैमेज हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेटेड बाय FSH कौन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल क्या चीज़ सिक्रीट करेंगे जो FSH को इनहिबिट करेगा, वेरी गुड, इनहिबिन। A patient has fracture of humerus, now cannot raise his arm above the shoulder, sensory loss on the lateral surface of the arm and loss of abduction of arm. Which nerve is damaged? तो इसमें abduction सारा कुछ, axillary और suprascapular nerve damage होगी, यानी कि initially वो नहीं कर पा रहा जो abduction है। ट्रेकिया की बाइफर्केशन किस लेवल पे होती है, T4 and T5। A patient is diagnosed as abdominal angina, which part is spared। तो डिसेंडिंग कोलोन को कौन सप्लाई कर रहा होता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और एब्डोमिनल एंजाइना क्यों होता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का इस्कीमिया हो जाता है। एब्डोमिनल एंजाइना में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, वेरी गुड, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्लैस्प नाइफ स्पेस्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पॉजिटिव साइन बिबिन्स्की साइन। तो जो ये वाली लीजन है ये बताएंगे पायरामिडल ट्रैक में आती है, एक्स्ट्रा पायरामिडल, ये मैंने आपको बताया हुआ है। नो, ये पायरामिडल ट्रैक में आएगी, एक्स्ट्रा पायरामिडल में लेड पाइप रिजिडिटी आती है। ठीक है, यहाँ इसके स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं। ये क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी होती है और इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें बिबिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है। ठीक है, नाइन 900 MCQs क्लियर है सबको। अच्छा, टाइम तो हमारा पूरा हो गया, आज हमने सिर्फ थोड़े डिटेल से किए हैं तो हमारे सिर्फ 100 MCQs कवर हुए हैं। अब मुझे ये बताएं जो बाकी आपके 100 MCQs हैं वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से कर लेंगे। कल वैसे आपका कल लाइव लेक्चर नहीं है तो कल आपका रिवीजन डे भी है, ठीक है। और कल आपने पूरा रिवाइज करना है। सेक्शन 3, ठीक है। और परसों को यानी कि 12 सितंबर को आपका वाइवा होगा। आप एसके को एटलीस्ट 1 आवर, एसके को 1 आवर भी दें तो बहुत है, और डबल ए को 2 आवर्स दिया करें, ठीक है। 2 to 3 आवर्स आप डेली फर्स्ट एड को दें। ठीक है, आप देखें आप 5-6 आवर्स भी, 6 आवर मिनिमम है आपके डेली स्टडी के। ठीक है, और फर्स्ट एड से बस आपने 6 सिस्टम अच्छे से करने हैं। ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से आपने अच्छे से करने हैं। ग्रिप आपकी इन पे अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी आपने GID लास्ट पे करनी है, ठीक है। CVS ये बस ये 6 सिस्टम आपने बहुत अच्छे से करना है। MS के बस आपने एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, और रिप्रोडक्शन रिवाइज बाद में आपने बस डबल ए से करना है इनको, ठीक है।
अपनी ये 6 सिस्टम पे आपकी की ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, रफ़ी पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, एसके के ऑलमोस्ट मेडिसिन वो मैं आपको करवा दूँगी अपने साथ। अगर आप मेरे साथ साथ भी चलते रहेंगे ना, एसके आप इस क्लास में बस कर लें, ठीक है। और डबल ए भी आप डेली 1 आवर तो मिनिमम 1 घंटा डेली करें डबल ए को, ठीक है। और कल आपने ये लेफ़्ट मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इसके प्रोवाइड कर दूँगी, और कल आपने सारा रिवाइज़ करना है, जिस स्टूडेंट के जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं। कल आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, कल आपने एसके सेक्शन 3 कंप्लीट करना है, और परसों इंशाल्लाह वाइवा लेंगे और फिर हम इसका सेक्शन 4 स्टार्ट करेंगे, ओके।